So hi everyone and welcome back once again to the channel. In today's video, in today's class, we are going to talk about the very important Global Financial Stability Report which was launched by IMF, International Monetary Fund in the month of April 2025. Now, why this report is important for RBI Grade B examination? Let me remind you, my dear friends, in the year 2023, if you have gone through the PYPs comprehensively, then you must know this fact that in 2023, RBI asked three descriptive questions of 15 marks in the ESI paper. And all of those questions were based on such reports only. Okay. So this is why it is very important to cover such reports, at least the important reports which are released by the important organizations. I have already provided a list of important reports which you guys have to cover, and I will be covering all the reports through my videos. ठीक है, चलिए. Today we are going to talk about the Global Financial Stability Report. Now let me tell you one thing, that this report is not required as per the objective paper, right? As per the pattern of objective paper, I think from this report they are not going to ask any objective question, but this report is very important for the descriptive paper, my dear friends. So we will discuss this report in the terms of descriptive paper only. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं with the Global Financial Stability Report. Now, this report, my dear friends, is released semi-annually by the International Monetary Fund, right? It is released twice, that is in the month of April and in the month of October. ठीक है, अप्रैल 2025 में रिलीज हुई है ये, इसलिए हम इसको अभी पढ़ रहे हैं. एंड अक्टूबर में दे विल बी रिवाइजिंग whatever they have suggested in this particular report if required. ठीक है. Now, what this report tells us? This report tells us the key vulnerabilities the global financial system is exposed to. पूरे दुनिया का जो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम है उसमें क्या क्या वल्नरेबिलिटीज है, क्या क्या रिस्क है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है ऊपर नीचे जाने की, वो सारी चीजें ये रिपोर्ट हमें बताता है. एंड देयर बाय इट प्लेज अ की रोल इन प्रिवेंटिंग क्राइसिस बाय हाईलाइटिंग पॉलिसीज दैट मे मिटिगेट सिस्टमैटिक रिस्क. अब देखो, अगर कोई रिस्क आने वाला है और हमें पहले से ही पता चल जाए, ठीक है, तो ऑब्वियसली वी विल बी डूइंग समथिंग, एंड दिस रिपोर्ट ऑल्सो गिव्स सर्टेन रिकमेंडेशंस टू मिटिगेट दोज रिस्क. ठीक है, एंड हेंस इट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग द क्राइसिस. ठीक है, contributing to global financial stability and the sustained economic growth of the IMF's member countries. ठीक है, this is why this report has been launched twice a year to basically prevent the economic crisis across the globe. ठीक है. Now, this report is divided, this report has two chapters. In first chapter, this report has highlighted what are the uncertainties, what are the possible uncertainties in the country, in the world, and number two, geopolitical risk, how geopolitical risks are enhancing and how they will be a very major reason for damaging the economies across the world. ठीक है, चलिए मैं ट्राई करूंगा बहुत इजी वर्ड्स में आपको समझाने की. बहुत 100 पेजेस की रिपोर्ट थी, इसको मैंने ट्राई किया है समराइज करने का. ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को बिल्कुल आसान शब्दों में समझाया जाए. ठीक है, चलिए, और ध्यान रखिएगा जो ये पीडीएफ में जितना भी कंटेंट है, बस इतना भी आप अगर अपने एग्जाम में लिख के आ जाएंगे, सो यू विल गेट जो 600 वर्ड्स का होता है उसमें आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे. ठीक है. Now, the first chapter is Enhancing Resilience and Global Trade Uncertainty. This report has highlighted that the financial stability risks have grown due to high uncertainty, tight financial conditions, and elevated leverage in the markets. And whenever this report says leverage, it means the borrowed money. It means the borrowed money, or you can also call it in simple terms debt. ठीक है, ठीक है, डेट. हम यहाँ पे जब भी लिवरेज की बात करेंगे तो हम किसकी बात करेंगे, डेट की बात करेंगे. तो तीन मेजर रीजंस बताए गए हैं इसमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिस्क के. सबसे पहला हाई अनसर्टेनिटी. पूरी दुनिया में जंग छिड़ी हुई है. ठीक है, रशिया यूक्रेन लड़ रहे हैं. अभी रिसेंटली खबर आई है कि यूके भी लड़ने जा रहा है रशिया से. ठीक है, और चाइना और इंडिया तो लड़ते ही रहते हैं, कोल्ड वॉर चलते रहते हैं. कुछ नहीं तो अभी इंडिया पाकिस्तान में भी एक काइंड ऑफ वॉर छिड़ गई थी. तो इन सब जियोपॉलिटिकल जो कंडीशन पूरी दुनिया में बना हुआ है, जिसकी वजह से हाई अनसर्टेनिटी है. ठीक है, टाइट फाइनेंशियल कंडीशंस, इन्फ्लेशन बड़ी मुश्किल से अभी कंट्रोल हुआ है पूरी दुनिया में. ठीक है, आपने देखा होगा जो इसका इकोनॉमिक आउटलुक आता है आईएमएफ का, उसमें जो ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, उसको भी
नीचे कर दिया है आईएमएफ ने, ठीक है। क्यों किया है? बिकॉज फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत टाइट है पूरी दुनिया में, ठीक है। एंड एलिवेटेड लीवरेज, जो डेट है ना वो पूरी दुनिया में बढ़ रहा है, नॉट ओनली इन इंडिया। आपने इंडिया की तो रिपोर्ट्स पढ़े होंगे, पूरी दुनिया में जो डेट है वो बढ़ता ही चला जा रहा है, जिसकी वजह से ऑफ कोर्स एक बबल क्रिएट हो रहा है, और जिस दिन ये बबल फटेगा इट विल इंपैक्ट द एंटायर ग्लोबल इकोनॉमी, ठीक है। एसेट प्राइस करेक्शंस, ये क्या है भाई? अब देखो, जब हाई अनसर्टेनिटी है, ठीक है, हाई अनसर्टेनिटी है, तो जो अननेसेसरी इंक्रीज हुआ है प्राइसेस में ऑफ द स्टॉक्स, ऑफ द इक्विटीज, ऑफ द बॉन्ड्स, वो डेफिनेटली करेक्ट होगा। और जब वो करेक्ट होगा तो उसके प्राइसेस गिरेंगे, स्टॉक मार्केट्स नीचे आएंगी, ठीक है। सो देयर इज अ चांस, देयर इज अ रिस्क ऑफ एसेट प्राइस करेक्शन, फर्दर एसेट प्राइस करेक्शन। अभी 2022 में यूएस में हुआ था, 2024 में हुआ था जापान में, ठीक है। और अब आगे और ज्यादा चांसेस है कि एसेट प्राइसेस जो है, एसेट प्राइस का मतलब यहाँ पे आप सिंपली समझिए बॉन्ड्स, इक्विटीज, स्टॉक्स, वो नीचे आएंगे, उसमें करेक्शन होगी स्टॉक मार्केट्स में, ठीक है। ये दो मेजर बातें हैं, आगे चलते हैं। सबसे पहला रिस्क दैट इज ऑफ एसेट प्राइस करेक्शंस, ठीक है। तो इसमें क्या है जी? स्टॉक एंड बॉन्ड मार्केट्स हैव बिकम हाईली प्राइस्ड, ठीक है। एनी अनएक्सपेक्टेड इकोनॉमिक और इन्फ्लेशन डेवलपमेंट्स कैन ट्रिगर द शार्प सेल ऑफ। अब आप देखो 2024 में जापान का एग्जांपल ले लो, जो उनका स्टॉक मार्केट, आई थिंक निकी, ठीक है, वो बहुत ऊपर गया था बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बहुत तेज फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई थी। जो उनकी करेंसी है येन, वो नीचे आ गई थी, जिसकी वजह से भी जो स्टॉक्स और बॉन्ड मार्केट्स थे उनके प्राइसेस बढ़ गए थे। लेकिन फिर क्या हुआ, जो जापान का सेंट्रल बैंक है उसने क्या करा, उसने इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा दिया। और जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो जो स्टॉक मार्केट्स है उसने इस तरीके से रिएक्ट किया कि जो उनका निक्की था वो लगभग 6-7% से गिर गया। सेम केस हुआ था 2022 में यूएस में, जब नेस्डैक लगभग 30% से गिरा था। और अभी जब हमारे ट्रम्प साहब ने ये इतने सारे टैरिफ्स लगा दिए, जिसकी वजह से अगेन जो स्टॉक मार्केट्स थे वो गिर गए। तो देर इज अ रिस्क, देर इज अ हाई रिस्क ऑफ एसेट प्राइस करेक्शंस फर्दर इन द इकोनॉमीज एज वेल, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये बता रहे हैं कि अभी भी जो स्टॉक और बॉन्ड मार्केट्स है वो हाईली प्राइस्ड है। तो अगर कोई सी भी अनएक्सपेक्टेड इकोनॉमिक या फिर इन्फ्लेशन डेवलपमेंट्स होती है, अब 2022 में जो यूएस ने स्टेप लिया था, जो इंटरेस्ट बढ़ाए थे, वो क्यों किया था? ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। उसकी वजह से क्या हुआ? स्टॉक मार्केट नीचे गिर गए, राइट। सेम यहाँ पे भी अभी भी यही रिस्क है कि अगर कोई भी अनएक्सपेक्टेड इकोनॉमिक या फिर इन्फ्लेशन डेवलपमेंट होती है तो इट कैन ट्रिगर शार्प सेल ऑफ, यानी कि कम प्राइसेस पे जो स्टॉक्स है वो बिकने शुरू हो जाएंगे और स्टॉक मार्केट विल क्रैश, ठीक है। सेम इज द केस विद क्रिप्टो करेंसी। द क्रिप्टो करेंसी मार्केट्स आल्सो शोड हाई वैल्यूएशन सजेस्टिंग स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट्स आर राइजिंग। पूरी दुनिया में स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट बढ़ रही हैं, ठीक है। और जब कोई भी करेक्शन होगी तो ये सब कुछ फटेगा। जो बलून फटता है ना, बिल्कुल वैसे ही होगा, राइट। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर हाईली लिवरेज्ड एंड इंटरकनेक्टेड। अब देखो यहाँ पे क्या दिक्कत है, जो बैंक्स और नॉन बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज है, जैसे कि हेज फंड्स और एसेट मैनेजर्स, दीज आर मोर इंटरकनेक्टेड। ऑब्वियसली द बैंक्स एंड द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर इंटरकनेक्टेड। ये तो बात क्लियर है। अब जो हेज फंड्स हैं, जो हेज फंड्स हैं, दे आर इंक्रीजिंगली टेकिंग द लेवरेजेस, दे आर इंक्रीजिंगली टेकिंग द डेट्स, ठीक है। hedge funds borrowing heavily may need to sell assets quickly if prices fall leading to a sell off spiral। अब वो बहुत ज्यादा पैसा ले रहे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा बोरोइंग्स हो रही हैं हेज फंड्स की। बेसिकली जो नॉन बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज है वो बहुत ज्यादा पैसा ले रहे हैं बैंकों से, ठीक है, या इधर उधर से मार्केट से। अब क्या होगा, जब मार्केट करेक्ट होगी तो उनके जो एसेट्स है उनकी वैल्यू नीचे जाएगी, फिर वो भी क्या करेंगे, सेल ऑफ करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। जिसकी वजह से जो जो डेट्स है उनके चांसेस है कि वो बैड डेट्स में कन्वर्ट हो जाए, राइट। Similarly, the private credit funds could transmit stress across borders due to lack of transparency। अब कुछ प्राइवेट क्रेडिट फंड भी चल रहे हैं पूरी दुनिया में, जैसे अनरेगुलेटेड लेंडर्स हैं या मिड साइज फर्म है, जो कि अननेसेसरी ब्याज पे पैसा लगाते हैं। तो वो भी क्या करेंगे, उनकी वजह से भी पूरी दुनिया में एक स्ट्रेस पहुंचेगा, एक फाइनेंशियल स्ट्रेस पहुंचेगा, ठीक है। नॉन बैंकिंग इंटरमीडियरीज को अगर हम आगे लेके चले, तो अगर जो एनबीएफआईज है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, अगर उनके एसेट के प्राइसेस नीचे जाने लगेंगे तो वो बैंक जिनसे उन्होंने पैसा लिया है, दे विल आस्क फॉर द मार्जिन कॉल्स। मार्जिन कॉल्स का मतलब क्या है यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 10 रुपए लिए, उसके बदले में कुछ एक्स कोलैटरल दिया। अब बैंक को लग रहा है कि 10 रुपए की जो वैल्यू कम जा रही है, तो बैंक कहेगा भैया मेरे को तो अपना पैसा बचाना है, मेरे पास कोलैटरल की वैल्यू बढ़ाओ आप। सो दैट इज कॉल्ड मार्जिन कॉल्स, ठीक है। या फिर इन्वेस्टर रिडम्पशंस, इन्वेस्टर को भी तो लगेगा ना भाई, ये तो
सिर्फ पैसे लेके बैठा है और उसकी एसेट की वैल्यू कम हो रही है, आई हैव टू रिडीम माई इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, सो जब when non-banking financial institutions will face the margin calls or the investment redemptions, they may be forced to delever, they will be again forced to sell off the assets, ताकि इन्वेस्टर्स को पैसा वापस किया जा सके या फिर मार्जिन कॉल्स कंप्लीट की जा सके, और इससे क्या होगा, जो फाइनेंशियल मार्केट है वो और ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें से ये भी तो होगा ना, क्योंकि देखो बैंक और एनबीएफसी सारे क्या है, इंटरकनेक्टेड है। जब एनबीएफसी के पास एनबीएफसी के एसेट्स नीचे जाएंगे, वो सेल ऑफ करना स्टार्ट करेगा, तो इसका इंपैक्ट बैंक पे भी तो आएगा। बैंक ने इन्वेस्टमेंट किया है ना एनबीएफसी ने, ठीक है, तो एनबी जो बैंक का पैसा एक्चुअली में वही तो जा रहा है, राइट। इफ एन एसेट मैनेजर फॉर एग्जांपल हैज टेकन टू मच लीवरेज एंड बॉन्ड प्राइसेस फॉल, दे माइट नीड टू सेल देयर एसेट्स क्विकली, ट्रिगरिंग मोर लॉसेस। ठीक है, sovereign bond market is also under pressure. Now what is the meaning of sovereign bond market here? Sovereign bond market का मतलब है जी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा आरबीआई इश्यूज द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, so this report has highlighted the governments across the world, especially the government with high fiscal deficits will face higher borrowing cost। ठीक है, जिनके पास फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा है, जैसे हर डेवलपिंग कंट्री के पास होता है, हमारे पास भी बहुत ज्यादा फिस्कल डेफिसिट है, तो हमारी जो बोरोइंग कॉस्ट है, जो हम दुनिया भर से पैसा लेते हैं फॉर आवर डेवलपमेंट, लाइक आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, एडीबी, एआईआईबी, वो जो बोरोइंग कॉस्ट है वो हमारे लिए बढ़ जाएगी, क्योंकि हमारा फिस्कल डेफिसिट ज्यादा है। ठीक है, इन द एग्जाम्पल ले लेते हैं, इन द यूएस एंड यूरो एरिया लार्ज गवर्नमेंट बॉन्ड इशुएंस कुड पुश बॉन्ड यील्ड्स हायर, इंक्रीजिंग इंटरेस्ट कॉस्ट फॉर एवरीवन। बॉन्ड यील्ड ऊपर हो जाएंगे तो इंटरेस्ट कॉस्ट जो है वो बढ़ेगी। ठीक है, नाउ व्हाट आर द पॉलिसी रिकमेंडेशंस रिगार्डिंग दिस रिस्क। ठीक है, सो बेसिकली अगर हम इस पहले चैप्टर के रिस्क को समझने की कोशिश करें, अगर इसको हम समराइज करने की कोशिश करें, तो पहला तो ये है कि एसेट प्राइस करेक्शंस का रिस्क है जी पूरी दुनिया में। क्यों? क्योंकि जो एसेट्स हैं वो हाईली प्राइस्ड है, और जैसे ही कोई इकोनॉमिक या फिर इन्फ्लेशन डेवलपमेंट होती है या फिर कोई भी इकोनॉमिक रिलेटेड अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट होगी, तो स्टॉक मार्केट्स विल एडजस्ट देमसेल्फ, द एसेट प्राइसेस विल मेक दी करेक्शंस। ठीक है, दूसरा ये है कि जब एसेट प्राइस करेक्शंस होगा तो इसका इंपैक्ट आएगा किसके ऊपर, बैंक्स के ऊपर और एनबीएफसीज के ऊपर या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर। ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर इसलिए आएगा क्योंकि जैसे ही इक्विटीज और बॉन्ड्स या फिर स्टॉक्स नीचे जाने लगेंगे, सो दे विल बी उनको सेल करना पड़ेगा अपना जो भी एसेट होगा, और जब सेल करना पड़ेगा तो उनको ऑफ कोर्स क्या होगा, लॉस होगा। और सेल क्यों करना पड़ेगा? बिकॉज द बैंक्स फ्रॉम वेयर दे हैव लीवरेज्ड द मनी, they will ask for the margin calls and also the investors will ask for the redemption of the investments। ठीक है, ये मेजरली इस चैप्टर में इन्होंने बोला। अब इसको करेक्ट कैसे किया जा सकता है, व्हाट आर दी पॉलिसी रिकमेंडेशंस। सबसे पहले द रिपोर्ट हैज suggested the strengthening of prudential policies and ensure that banks and NBFIs have enough capital and liquidity buffers। अब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास अगर कैपिटल और लिक्विडिटी बफर्स होगा, सो वो मजबूर नहीं होंगे उस समय अपने एसेट्स को सेल करने के लिए, और थोड़ा सा वेट कर लेंगे जब मार्केट जो है वो वापस नॉर्मल लेवल पे पहुंचेगी। ठीक है, दे हैव टू प्रिपेयर द इमरजेंसी लिक्विडिटी टूल्स एंड इंटरवीन अर्ली इन द मार्केट्स इफ नीडेड। इमर्जिंग मार्केट्स स्पेशली नीड टू फॉलो द कंट्री स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज। अब देखो जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं, जैसे इंडिया हो गया, ठीक है ना, बांग्लादेश है, या फिर मिडिल ईस्ट की बहुत सारी कंट्रीज है, इनको कंट्री स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज फॉलो करनी पड़ेंगी। ठीक है, अब इंडिया के लिए स्ट्रैटेजी अलग हो सकती है और बांग्लादेश के लिए स्ट्रैटेजीज अलग हो सकती हैं, तो इस तरीके से। एंड देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन ऑफ बेसल 3 इंप्लीमेंटेशन फॉर द बैंक्स एंड स्ट्रॉन्ग सुपरविजन टू एड्रेस द रिस्क टेकिंग। अभी मैं कल परसों न्यूज पढ़ रहा था, अराउंड 30,000 करोड़ का कोई फिर से बैंक फ्रॉड हुआ है। आई डोंट नो ऑथेंटिसिटी क्या है उस चीज की, लेकिन ओवरऑल 30,000 करोड़ का बैंक फ्रॉड हुआ है लास्ट ईयर। उसका रीजन यही है, पूरी दुनिया में आप लोगों ने देखा होगा आजकल जो डेट है वो इतना ज्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, क्रेडिट कार्ड कंपनीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इतने सारे ये सब क्या कर रहे हैं, डेट पे डेट दिए जा रहे हैं। अब लेकिन डेट इतना ज्यादा अगर जाएगा तो उसकी वापस आने की भी तो प्रोबेबिलिटी यार, वो उसको देखा नहीं जा रहा है, बस डेट दिया जा रहा है। ठीक है, आपने देखा होगा क्रेडिट कार्ड कंपनी जैसे प्रसाद की तरह क्रेडिट कार्ड बांटे जा रही हैं, उससे क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा डेट बढ़ रहा है मार्केट में। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो बैंक से इम्पैक्ट किसके ऊपर आएगा, जो बैड डेट बन जाएगा तो इम्पैक्ट किसके ऊपर आएगा, बैंक के ऊपर आएगा, और अल्टीमेटली किसके ऊपर आएगा, इकोनॉमी के ऊपर आएगा, क्योंकि वो पैसा तो इकोनॉमी से ही निकल रहा है। ठीक है,
अभी जैसे अगर मैं पर्टिकुलरली इंडिया की बात करूं तो इंडिया में जो डेट है इस समय वो तो ऐसा हो गया है कि अगर मुझे 100 रुपए की चीज बनानी है तो उसके लिए भी डेट अवेलेबल है, और 100 करोड़ की बनानी है उसके लिए भी डेट अवेलेबल है, राइट। ऊपर से सरकार भी बहुत सारा डेट दे रही है, बहुत सारा ग्रांट बांट रही है। लाइक मुद्रा स्कीम में अगर आप देखो, बहुत सारे स्टार्टअप मुद्रा स्कीम में जो कि जिन्होंने पैसा लिया बहुत सारे फेल है। वो पैसा कहाँ गया? वो पैसा वापस तो आएगा नहीं। दैट इज ऑल बैड डेट नाउ। और वो पैसा आया कहाँ से? इकोनॉमी से ही तो निकला है। तो all these things will definitely impact the economies across the world. Now, geopolitical risks क्या है भाई? अब देखो पूरी दुनिया में, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया भाई, कोई कहीं लड़ रहा है, कोई कहीं लड़ रहा है, कोई कहीं लड़ रहा है, ठीक है। मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, कहीं टैरिफ लग रहे हैं, कहीं सैंक्शन लग रहे हैं, ठीक है। ऑल दीज हैव राइजन एंड इट इज नाउ इफेक्टिंग द फाइनेंशियल एसेट प्राइसेस एंड स्टेबिलिटी, ठीक है। स्टेबिलिटी बढ़ती है भाई, जब यूएस ने सारे टैरिफ लगा देगा पूरी दुनिया के ऊपर, तो वहां के इन्वेस्टर्स को लगेगा ना यार कि भाई अब हटो, चलो यहाँ से, रहने दो, पैसा निकालो यहाँ से, तो स्टॉक मार्केट नीचे आएंगी ही आएंगी, ठीक है। एग्जाम्पल, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट लेड टू डिक्लाइंस इन स्टॉक प्राइसेस स्पेशली इन अफेक्टेड और नेबरिंग कंट्रीज, ठीक है। अब कोई जैसे यूक्रेन का पड़ोसी देश है, ठीक है, जैसे आई थिंक पोलैंड, तो पोलैंड में जो स्टॉक प्राइसेस है वो नीचे जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि यूक्रेन का आदमी माइग्रेट करके पोलैंड जा रहा है, तो यूक्रेन जो इकोनॉमी पे इंपैक्ट आएगा वो किसकी आएगा? पोलैंड की आएगा। तो वहां के जो इन्वेस्टर्स हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, वो सोचेंगे भाई रहने दो, अब इस कंट्री में इन्वेस्ट करने का फायदा नहीं है, सो दे विल टेक देयर मनी बैक फ्रॉम दी मार्केट्स, and of course it will have a huge impact on the stock prices and ultimately on the economy, ठीक है। how geopolitical risk affect markets? So lower investor confidence, I already told you, uncertainty, trade and financial restrictions जो कि हमारे ट्रम्प भाई साहब लगा रहे हैं पूरी दुनिया के ऊपर, and physical damage। अब इंडिया में अगर मान लो इंडिया पाकिस्तान की वॉर हो जाती और इंडिया में बहुत ज्यादा फिजिकल डैमेज हो जाता, तो डू यू थिंक दैट इन्वेस्टर्स विल कम टू इंडिया एंड इन्वेस्ट कि चलो हम तब भी आप में इन्वेस्ट कर देंगे? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। यूक्रेन में आज पूरा यूक्रेन फ्लैट हो चुका है ऑलमोस्ट, तो आपको लगता है कि कोई फॉरेन इन्वेस्टर जाके वहां पे इन्वेस्ट करेगा? तो ये जो जियोपॉलिटिकल लड़ाइयां चल रही हैं पूरी दुनिया में, इससे इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटी, because of the trade and financial restrictions, and because of the physical damage that these wars are creating across the globe, ठीक है। and stock prices of course tend to fall moderately after such events, but military conflicts can lead to bigger and long lasting effects, ठीक है। very simple to understand. now talking about the sector level and country level impact, अगर हम सेक्टर लेवल और कंट्री लेवल इंपैक्ट की बात करेंगे, सो द फर्म्स, द सेक्टर्स विच आर एक्सपोज टू द कॉन्फ्लिक्ट जोन, जैसे फॉर एग्जांपल जो कंट्रीज रशिया और यूक्रेन के पास है, उनके स्टॉक में ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है, और जो इन्वेस्टमेंट है वो बाहर निकलती रहेगी, राइट। और कमोडिटी इंपोर्टिंग कंट्रीज आर मोर नेगेटिवली अफेक्टेड दैन द एक्सपोर्टर्स, जो इंपोर्टिंग कंट्रीज होंगी, जो नेट इंपोर्टर्स होंगे, उनके ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट आने वाला है, ठीक है। मान लो रशिया से हम कोई XY चीज इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, अब रशिया से इन्वेस्टर्स ने पैसा खींच लिया, रशिया में क्या हो जाएगा? वो चीज महंगी हो जाएगी, तो अगर रशिया में वो चीज महंगी हो जाएगी तो हमारी भी तो महंगी पड़ेगी, अरे हाँ कि ना। वहीं अगर हम एक्सपोर्टर होते, नेट एक्सपोर्टर होते रशिया के साथ, तो वही चीज हम एक्सपोर्ट कर देते रशिया को और वहां से हमारा मुनाफा हो जाता, ठीक है। तो जो कमोडिटी इंपोर्टिंग कंट्रीज है उनको बहुत ज्यादा इंपैक्ट आने वाला है बिकॉज ऑफ दिस जियोपॉलिटिकल सिनेरियो दैट इज राइट नाउ गोइंग ऑन, ठीक है। Banks in emerging markets are more vulnerable due to obvious reasons, and NBFIs such as investment funds may face redemptions and forced sales if exposed to the geopolitical events. तो जो हमने पहले चैप्टर में इसमें पढ़ा कि जो इम्पैक्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इन्फ्लेशन डेवलपमेंट की वजह से आ सकता है, एसेट प्राइस करेक्शन होगा, तो जो NBFIs है वो अपने एसेट्स को सेल ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। वो इम्पैक्ट जियोपॉलिटिकल रिस्क की वजह से भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि अगर लड़ाइयां होंगी तो इन्वेस्टर बोलेगा लाओ पैसा दो हमारा भैया। अब इन्वेस्टर जब बोलेगा पैसा दो, स्टॉक मार्केट गिर चुकी है, इसको मजबूरी में अपने जो एसेट्स हैं उसको सेल करना पड़ेगा, तो एंड में होगा क्या? NBFIs खत्म हो जाएंगे, ठीक है। एंड लास्ट, द पॉलिसी रिकमेंडेशंस फॉर द जियोपॉलिटिकल रिस्क। नंबर 1, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मस्ट एलोकेट रिसोर्सेज टू आइडेंटिफाई एंड मैनेज द जियोपॉलिटिकल रिस्क, ठीक है। हमें जो सेंट्रल बैंक्स हैं उनको ये देखना पड़ेगा कि क्या क्या जियोपॉलिटिकल रिस्क हो सकते हैं पूरी दुनिया में और उसको पहले से हम कैसे मैनेज करके चले, ठीक है। रेगुलेटर्स शुड एंश्योर एडिक्वेट कैपिटल एंड लिक्विडिटी बफर्स। सिनेरियो एनालिसिस एंड स्ट्रेस टेस्ट शुड इंक्लूड जियोपॉलिटिकल रिस्क। अब अगर हम आज के डेट में पूरी दुनिया में अगर हम सिनेरियो एनालिसिस करते हैं कि ठीक है आगे आने वाले 10 सालों में इकोनॉमी का क्या हालत होगी, तो हमें उस सिनेरियो एनालिसिस में वी नीड टू कीप इन लूप
द जियो पॉलिटिकल सिनेरियो एज वेल। क्योंकि आज फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिया पाकिस्तान की वॉर चलो रुक गई, अगर वो वॉर एक्सटेंड हो जाती, 1 महीने 2 महीने चल जाती, तो सोचो क्या होता दोनों इकोनॉमीज का हाल। ठीक है, देखो जंग में किसी की जीत नहीं होती, जंग में कोई नहीं जीतता, किसी का कम नुकसान होता है और किसी का ज्यादा नुकसान होता है। ठीक है, हम अगर पाकिस्तान को मारते, तो अगर हम उनके 10 मारते तो एक तो हमारा भी मरता ही मरता, दैट इज फॉर श्योर, है ना। तो नुकसान तो हमारा भी होता है, ऐसा नहीं है। अभी ऑपरेशन सिंदूर में भी हमारे बहुत सारे जवान शहीद हुए हैं, ठीक है ना। और चलो हमारा कोई फिजिकल डैमेज आज सच नहीं हुआ, लेकिन अगर वो लंबा चलता तो डेफिनेटली कोई ना कोई डैमेज तो होता। तो अब सिनेरियो एनालिसिस करते वक्त, अब जब हम इकोनॉमिक टारगेट्स बनाएंगे, इकोनॉमिक प्लानिंग करेंगे, तो पूरी दुनिया को ये ध्यान में रखना पड़ेगा दैट वी नीड टू फोकस ऑन द जियोपॉलिटिकल सिनेरियो एज वेल, के बिना काम नहीं चलेगा। And last, emerging markets must deepen their financial systems and maintain policy buffers to reduce vulnerability, and this is the reason। आप देखो हम कहते हैं ना कि आरबीआई क्यों फॉरेन रिजर्व्स के ऊपर इतना फोकस कर रहा है, इसीलिए कर रहा है क्योंकि अगर कल को कोई ऐसा अनएक्सपेक्टेड जियोपॉलिटिकल इवेंट हो जाता है हमारे देश के साथ, तो इन दैट केस एटलीस्ट हमारे पास इंपोर्ट करने के लिए फॉरेन रिजर्व्स होने चाहिए। ठीक है, all right, my dear friends, so that was all about the global financial stability report. I hope the report is clear। इससे ज्यादा आपको इस रिपोर्ट में करने की जरूरत नहीं है। as you must have understood till now that any objective question cannot be asked from this particular report। of course obviously ये जरूर पूछ सकते हैं that which of the following organizations releases the global financial stability report। the answer would be IMF। ठीक है, या फिर मे बी ये पूछा जा सकता है कौन कौन से महीने में इस रिपोर्ट को रिलीज किया जा सकता है। इन दैट केस द आंसर वुड बी अप्रैल एंड अक्टूबर। ठीक है, इस तरीके के आ सकते हैं, बट ऑफ द रिकमेंडेशंस ऑफ द कंटेंट ऑफ द रिपोर्ट दे कैन नॉट आस्क द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन लेकिन जरूर पूछा जा सकता है। तो जो हमने इस पूरी स्लाइड्स में पढ़ा है, यू कैन जस्ट study that, and if you want to have the PDF of this channel, you can just search for PIB by Manish sir, PIB by Manish sir, and you will get the link to the channel। and if you do not get the link to the channel or the PDF, you can just DM me at Mashimanish, I'll give you the link to the channel। Alright guys, thank you very much, goodbye, take care and God bless।